Focus story today is unfortunate capital tragedy that has led to 18 people losing their lives. Let's tell you first what we know about the capital stampede horror so far. This took place between platform number 12 and 16 of the New Delhi railway station. Preliminary information that has come in suggests that crowds suddenly began to swell on certain platforms, which eventually led to panic and descended into complete chaos. Multiple versions have now emerged of what could have led to the death of at least 18 people and leaving several others injured. Some of the eyewitnesses say that the platform of a particular train was changed at the last minute. This version has been contradicted by CPRO of Northern Railways. He says that there was no last-minute cancellation or change of platform. Eventually, people fell on the stairs, they hit each other. Delhi police says that confusion over two trains with similar names could also have been the reason, because announcement was made for Prayagraj Special and Prayagraj Express, and people might have gotten confused between the two trains, leading to the sudden movement on the platform. But before we tell you more about that, let's take a look at this ground report. This is the place where that unfortunate incident took place, because what we had been told by the eyewitness that people were waiting at platform number 14 so that they can board a train for Prayagraj. All of a sudden, there was an announcement. Announcement was that they were directed to move towards platform number 16, because of which there was a sudden surge of rush and people started rushing towards this side. And still you can see the telltale signs are still here. And this narrate the whole story. What really must have happened last night? You can see the bottles are lying there. Then you can see some items, the eatables, also lying here. And this is the place when, because of sudden surge, there was a frantic scramble. And because of that frantic scramble, the people started tumbling over each other. And because of suffocation, many people lost their lives. And those who were injured were evacuated to hospital. This is the staircase. Though the staircase that is leading towards platform number 14, right now it has been cleared. But yesterday there was a different situation here. People were lying over each other. Some of them died because of suffocation. Last night at about 9:30, when all of a sudden they were directed to move towards other platform, and because of which there was a sudden surge, and because of which people started moving towards this side, and some people stumbled over each other, and because of suffocation they lost their life. And here there was a complete chaos, there was a complete panic. This was a place where actually the people were waiting to board a train. Right now the certain measures have been taken. You can see the rope has been tied because they are trying to manage crowd properly. So what really could have led to that disaster? If officials are to be believed, even they don't know the final reason, because we've got two different versions, two contradictory versions emerging. Listen in to those for yourself. जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन्स का डिले, कुछ तो ट्रेन्स डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा दो ट्रेन का डिले। एक खबर ये भी आ रही है कि एंड मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का नंबर चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म चेंज हुए हैं, इस वजह से ऊपर ब्रिज पे भगदड़ हुई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस दौरान हम लोगों ने 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई, ट्रेन ऑन डिमांड। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैंसिल करने की बात तो दूर की बात है, हमने तो 5-6 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई, ये था। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँ, स्थिति रात भर नियंत्रण में थी, नॉर्मल थी, सभी ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम पर चली, स्पेशल ट्रेन चलाई हमने। अभी भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नॉर्मल है। So now, one of the obvious reasons is that because there has been a sudden surge of passengers traveling to Prayagraj because of Mahakumbh. To add to that, it was a Sunday today, so there would be a proportionate increase in the number of people who would have wanted to go to Prayagraj. But that is not only the case with New Delhi railway station or the national capital. We also took stock of situation across the country, especially in places like Amritsar and Lucknow, where
trains also saw a sudden increase in the number of passengers trying to board the trains that were headed to Triveni Sangam. Listen in to those reports. तो ये कुंभ जाने वालों की वजह से भीड़ है, क्या लग रहा है आपको मैम? वही कारण है, कुंभ जाने वालों के कारण ही हो रहा है इतना, और लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। गुरु जी बोलते हैं घर बैठो ते अपना सब कुछ तीर्थ घर पे ही है। स्टेशन पर हमने देखा कल जो हादसा हुआ दिल्ली में, उसके बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं स्टेशन पर जो भीड़ हो रही है उसको देख? नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, दिल्ली में ही दिक्कत थी, उसके आगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप कल दिल्ली में ही थे? हाँ। कौन सी स्टेशन पे थे आप? हम ओल्ड दिल्ली में थे, बाकी दिक्कत तो नई दिल्ली में हुई है ना। तो अमृतसर में तो ज्यादा अब रश नहीं दिखाई? यहाँ तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो नॉर्मल है, बिल्कुल ओके। पंजाब के अंदर नॉर्मल है, बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सावधान बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो लोग कुंभ जा रहे हैं ज्यादातर कह रहे हैं कि उनकी वजह से इस टाइम भीड़ हो रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुंभ की वजह से भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। चढ़ने के चक्कर में ना भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी, तो लोगों में पेशेंस नहीं है, उस वजह से ही हुआ है हादसा। वैसे ब्लेम नहीं करना कि कुंभ की वजह से भीड़ है या इसकी वजह से भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगदड़ हुई, जल्दबाजी की वजह से भगदड़ हुई है, वो जल्दबाजी की वजह से। Indian Railways are currently running multiple special trains for Mahakumbh. This is one of the special train that is being run for Kumbh. You can see it's written on the Kumbh special, and you can see the scene on the Charbagh railway station. Currently we can't see any railway official, the GRP personnel or RPF personnel at the railway station, and you can see the kind of crowd that is now at the platform number 2 of Charbagh railway station. All the people they have gathered outside the train, and this is one of the Kumbh special. कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं ट्रेन? दिल्ली से जो है ना गाड़ी खुली थी प्रयागराज के लिए, अब ये लखनऊ क्यों घुमा के ले आए सर? दिल्ली से आ रहे हैं आप लोग? हाँ, दिल्ली से आ रहा हूँ। वहाँ भगदड़ हो गई थी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ इसके लिए क्या किया गया, स्पेशल ट्रेन कर दिया। और कानपुर होते हुए बोला, लेकिन ले आया लखनऊ होते हुए ले आ रहा है। यहाँ लखनऊ कब पहुँचे आप लोग? यहाँ हम लोग कम से कम हाँ आधा घंटा 45 मिनट। अभी तक क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई है? कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुए सर। और अभी आप लोग प्रयागराज नहीं पहुँच पाए हैं? नहीं सर, कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं? हम आधे घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं जी। यहाँ लाने की क्या जरूरत था सर, जब कानपुर से डायरेक्ट 1 किलोमीटर के अंदर में घुमा के लेके आ गया इधर में, जो अब हम लोग प्रयागराज पहुँच जाते। कुंभ को लेकर पटना से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें खचाखच भरी रह रही है, और आप देखिए किस तरह का नजारा है पटना जंक्शन पर। यहाँ पर ट्रेन आने से पहले जो कतार देखिए लोगों की, भारी भीड़ पटना जंक्शन पर दिख रही है। प्लेटफॉर्म पर किस तरह से लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए देखिए भागम भाग करते दिख रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन के तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और अनाउंसमेंट के बाद लोगों को कहा जा रहा है कि वो क्यू में रहे, आराम से वो यहाँ पर ट्रेनों में चढ़े। देखिए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो लगातार किया जा रहा है। देखिए जितना उतरने वाले से ज्यादा चढ़ने वालों की भीड़ यहाँ पर स्टेशन पर देखने को मिल रही है, और ये तमाम ट्रेनें जो हैं वो यहाँ पर खचाखच भरी हुई यहाँ से जा रही है। जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आप तस्वीर देखिए यहाँ पर कि क्या है स्थिति रेलवे स्टेशन की। बड़ी संख्या में चूंकि लोग यहाँ पर इस ट्रेन से सफर करते हैं, तो ऐसे में परेशानी भी होती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं। ये कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? ब्रह्मपुत्रा। बहुत भीड़ है यहाँ तो जाइए न करेंगे, कैसे चढ़ जाइएगा? चढ़ जाएंगे। हाँ। डर नहीं लगता इतनी भीड़ में जाते हैं? डर कौन लगेंगे, सब तो भीड़ है। मधुबनी से जी बहुत भीड़ है, कैसे बहुत जाइएगा? भीड़ है, देखिए आप जैसे गंगा मैया ले जाए। डर नहीं लगता कि इस तरह से भीड़ में आप अब निकल गए घर से तो किसी तरह तक घूमना ही लेंगे। सरकार का तो व्यवस्था सुन रहे वहाँ भगदड़ हो जाता है। दिल्ली में अभी हो गया स्टेशन पर, नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, जान भी जा सकती है? जिसका जान जाना होगा उसको जिस जगह पे उसको वहाँ तो पहुँचना ही पड़ेगा ना। कहीं रहिए तो जेबे करेंगे। तो आस्था की डुबकी लगाएंगे? हाँ एकदम लगाएंगे सर। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ स्नान में? जी सर। उनके बच्चे को लेके? हाँ सर। बहुत भीड़ है, दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत तो है ना जी। बच्चों को लेके डर नहीं लगता कि भीड़ भाड़ में? नहीं जा सके तो नहीं जाएंगे, जा सके जाएंगे ना तो नहीं जाएंगे। हाँ, स्थिति क्योंकि देखिए आप किस तरह से खचाखच यहाँ पर बढ़ा हुआ है। जी सर। कितने लोग हैं आप लोग? अच्छा, सब पूरा परिवार जा रहे हैं?
देखिए यही स्थिति है। आप प्लेटफॉर्म पे देखिए, आपको जो भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं सब कुंभ स्नान के लिए किस तरह से उमड़ पड़े हैं। इस जो जनसैलाब है वो किस तरह से उमड़ पड़ा है। और ये तस्वीर आपको देखिए, प्रशासन के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को कंट्रोल करने में, क्योंकि आप पटरी पर ना कोई गिर जाए, क्योंकि अचानक से अगर ट्रेन आती है और जिस तरह की भीड़ है, भगदड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन के तरफ से लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर स्टेशनों पर किया जा रहा है और परिस्थिति को महाकुंभ की महाभीड़ और इस महाउत्सव के बाद फिलहाल अभी भी लोगों का हर्षोल्लास कुंभ प्रयागराज में पहुंचने के लिए तेज है। फिलहाल हम जिस बस स्थान के अंदर खड़े हैं, बस के अंदर यहाँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये भी महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी, बस से क्यों जा रहे हैं? ट्रेन नहीं है। हाँ? ट्रेन नहीं है। ट्रेन नहीं है। कितना समय लगेगा इससे? जो भी लग जाएगा, 6-7 घंटा लग जाएगा। लेकिन जाएंगे जरूर? जाएंगे। कई और भी लोग हैं। आप लोग कितने लोग जा रहे हैं एक साथ? हम लोग 7 आदमी जा रहे हैं। 7 लोग जा रहे हैं। ट्रेन नहीं मिली इसलिए? नहीं, ट्रेन का पता लगाने नहीं गए, डायरेक्ट बस के पास। डायरेक्ट बस से आ गए। माता जी, बहुत भीड़ है, भगदड़ हो रही है हर जगह, फिर भी जाएंगी? जा रहे हैं। अब उनकर जो ही मर्जी होगा वही होगा। अच्छा, उनका जो मर्जी होगा वही होगा, उनका ही मर्जी से जो होता है होगा। अच्छा। ट्रेन में कल रात में आए, एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, स्लीपर, कोई एक्सक्यूज नहीं। 12 बजे रात में रिटर्न गए, फिर आ जाए। कोशिश जारी है वहाँ पहुँचना। बाकी बाबा के साथ हम लोग हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भीड़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि ट्रेन में जगह नहीं होने के चलते, ट्रेनें रद्द होने के चलते अधिकतर लोगों को बस से प्रवास करना पड़ रहा है। दिक्कतें जरूर हैं क्योंकि स्पेशल ट्रेनें भी काफी हद तक कम पड़ रही हैं और इसीलिए बस मार्ग से, रास्ते के रोडवेज से फिलहाल जो है वो लोग अपने सफर को पूरा कर रहे हैं। लेकिन उत्साह यह भी है कि कुंभ तक, गंगा माता तक किसी भी तरीके से पहुंचने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर जारी है। भीड़ लगातार जारी है, कई लोगों को सीट भी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अगली बस का भी इंतजार कर रहे हैं। कौशाम्बी बस डेपो पर फिलहाल हम मौजूद हैं। प्रयागराज पर जाने की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। फिलहाल मैं जिस बस के सामने खड़ी हूँ यह भी प्रयागराज ही जाएगी और आपको मैं बता दूं जो भीड़ है बस के अंदर वो उसी तरीके से बढ़ी हुई है, बनी हुई है। एक खास तस्वीर आपको मैं अन्य बस की भी दिखाती हुई चलूं कि आप देखेंगे कि जो खास बसें चलाई जा रही हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि स्नान पर्व जो है उसका भी पूरा शेड्यूल इसमें लिखा जाता है। ये You heard reports from across the country. One thing is for sure that there is nothing that can stop the faithful from heading towards Prayagraj. But something that needs to be kept in mind is the number of people who are going there. And for the viewers, for the faithful, we can request them to just think twice before they head towards Prayagraj, because watch what happened to this father at New Delhi railway station. He lost his child in front of his eyes. परिवार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी 7 साल की बेटी को खो दिया है और ये बहुत ही दुखद है। बात करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। सर, क्या स्थिति थी वहाँ पर? मैम, वहाँ ट्रेन से उतरे, उनका हम घर जा रहे हैं तो ऊपर सीढ़ी चढ़े तो लोग ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इधर से कम थे लोग। एक के ऊपर एक गिर, मतलब ऊपर आ गए। ऊपर से बैग भी फेंक रहे थे, अटैची फेंक रहे थे लड़के। उसमें इतने लोग दब गए, नाकों से खून निकल रहा था। मेरी बेटी ना वो लोहे का वो था ना, उसमें घुस गई और उसके माथे पे पूरा वो हो गया, पूरा लाल पड़ा। छोटी थी जब गोदी में। कल हम पार्टी में घूम के आए थे, आज हम उसको उसमें लेके जा रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है, बात करना बहुत मुश्किल है, मैं समझती हूँ। लेकिन सर, बता सकते हैं क्या वहाँ पर स्टेशन पे कोई हेल्प करने के लिए था? नहीं मैम, हम ऑटो से आए, ऑटो से। कोई अस्पताल आप लेके आए? ऑटो से। आप एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई थी मैम, हम खुद ऑटो से आए। वहाँ से जो सामान धोते ना कुली, उन्होंने पैसा में दिया, मेरे जेब से पैसे भी, मोबाइल भी निकाल लिए। चोरी कर लिए? हाँ, और उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने 300 रुपये 400 रुपये, तो हम लेके आए अपनी बेटी को यहाँ पे ऑटो से। कोई एम्बुलेंस नहीं थी मैम, कोई निकलने की जगह ही नहीं थी। वो हम इतनी स्पीड में आए कि ट्रेन आ जाए ना तो हम कट के मर भी जाते। फांदते हुए आए पूरे पटरी से,
उससे भी नहीं है कि जीने चढ़े, जीने होने में जगह नहीं थी। लेकिन मैंने जैसे देखा मेरी बेटी का हाथ नीचे, नस नहीं चल रही, मैं तुरंत भागा, बाप भी दे, लेकिन कुछ परिवार के कितने लोग थे आप लोग प्रयागराज जाने के लिए? क्या आप लोग की ट्रेन की बुकिंग टिकट्स? नहीं मैम, हम वो जनरल टिकट से जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? 6 लोग। और बाकी लोग कहाँ पर? यही है सब। एक ही बेटी है, ये मेरी बेटी। Our thoughts and prayers are with the family. May God give them the strength to deal with the loss. Taking a quick breather.